session. In this session, we are going to learn zeros of a polynomial and after that about the remainder theorem. In the earlier lesson, we have done the basics of polynomial, where I taught you the basic types of the polynomial. After that, we have done the NCERT exercise 2.1 also. Now today, I am going to start the zeros of a polynomial. Actually, polynomial, what is the polynomial I taught you. Now today actually what we are going to learn, what is the meaning of zeros. Zeros का मतलब क्या होता है, हमको ये समझना है. Suppose we have a polynomial px is equals to x minus 2. बेटा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px is equals to x minus 2. This is a polynomial because ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो पावर है वो 1 है और पावर 1 होने के बाद ये होल नंबर में है. Keep in your mind what is a polynomial. So I am telling I have a polynomial px is equals to x minus 2. Now suppose I am putting 1 in place of x. I am putting 1 in place of x. So 1 minus 2. Here also p1 means what? p1 देखो ना px का मतलब क्या है कि polynomial in terms of x. So p1 का मतलब, what is the meaning of p1? That means I have put the value 1 in place of x. So now again p1, the value of p1 is minus 1. You can see the value of p1 is minus 1. Now suppose I am calculating p0. p0 means what? x की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे. तो जब मैं x की प्लेस पे 0 पुट करने जाता हूँ, so I will put 0 here in the place of x and I will get p0 is equals to minus 2. Okay. Now moving ahead, suppose I am putting 2. Okay, I put 2 here in place of x. So p2, that means 2 minus 2 and that is 0. Okay. So इस चीज से आप एक ऑब्जर्वेशन देखिए जरा सा कि px का हमारे पास x minus 2, p1 means I have put the value 1 in place of x, तो ये आया आपका 1 minus 2 minus 1, p0 की वैल्यू निकल के आई minus 2, p3 की वैल्यू निकल के आई 0. In this way you can put any number in place of x, any real number in place of x to get different values. आप इस x की जगह पे, इस x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो टू गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर द पर्टिकुलर नंबर. तो जीरोस का मतलब क्या होता है? देखो, जीरोस का मीन्स होता है पॉलिनोमियल के लिए वो रियल नंबर, द पर्टिकुलर रियल नंबर फॉर एनी पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल के लिए वो रियल नंबर जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देता है. क्या बोला? द value of the real number which makes the value of polynomial 0. जो क्या करता है? वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देता है? 0 बना देता है. उससे हम क्या कहते हैं? zeros of the polynomial. And it is also called root or solution. We can also say solution of the polynomial, root of the polynomial, or zeros of the polynomial. Basically in your syllabus it is called as zeros. Zeros का मतलब समझ में आ रहा है? फिर देखो, I am taking one more example. px is equals to x minus 7. px is equals to x minus 7. So what can be the value of x? What can be the value of x which will make the answer 0? इस x की जगह पर क्या ऐसी वैल्यू पुट करूं जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देता है? सपोज आई पुट हियर 1, मैंने 1 रखा तो ये बना 1 minus 7 minus 6. तो क्या मैं ये कहूंगा कि 1 जो है इसका 0 है? 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है? नहीं है. व्हाई? बिकॉज 1 पुट करने के बाद जो आंसर है वो -6 बन रहा है. 1 पुट करने के बाद आंसर 0 तो बन नहीं रहा है. सो इफ आफ्टर पुटिंग 1 इन प्लेस ऑफ x आई एम नॉट गेटिंग 0, सो I cannot say कि ये जो 1 है ये 0 है. मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 1 0 है. तो 0 क्या है? देखो, आप अगर 7 पुट कर देंगे x की प्लेस पे, then it will become 7 minus 7 is equals to 0.
because here in place of x you will also put 7, so it will become 7 minus 7 0. then you can say कि जो 7 आया, क्या 7 आया, 7 is a root of px और पॉलिनोमियल। जो ये 7 आया ये हमारे पॉलिनोमियल px के लिए क्या है, रूट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो पहले तो रूट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। रूट का मीनिंग क्या है कि वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देती है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड रूट और जीरो ऑफ द इक्वेशन और पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखो हम बार बार ऐसे वैल्यू तो पुट करने चलेंगे नहीं कि बार बार हम वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि हाँ आइदर वी आर गेटिंग जीरो और नॉट। तो इस चीज को हम बार बार चेक करेंगे नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू? वी हैव अनदर मेथड्स टू सॉल्व इट। क्या मेथड रखें, देखिए। सपोज फर्स्ट एग्जांपल आई हैड टेकन x minus 3, आई हैड टेकन दैट एग्जांपल। ठीक, सो इसको हमें निकालना है कि इसके लिए हमारे पास किस x की किस वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ x द पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। सो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है बेटा, है ना, द इक्वेशन विच वी हैव गिवन विल पुट दैट इक्वल्स टू जीरो। मुझे इसकी वैल्यू कितनी बनानी है मुझे बता। मैंने इसको इक्वल्स टू जीरो क्यों पुट किया, क्योंकि मैंने क्या बोला, मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसको जीरो बना दे। मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसको जीरो बना दे। दैट मींस अल्टीमेटली आई वांट इट्स वैल्यू जीरो। और जब मैं इसकी वैल्यू जीरो चाह रहा हूँ तो मैं इसको इक्वल्स टू जीरो पुट कर सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज की वैल्यू जीरो चाह रहा हूँ तो मैं उसको इक्वल्स टू जीरो पुट कर सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज की वैल्यू 5 चाह रहा हूँ तो आई कैन पुट इक्वल्स टू 5। सो हियर आई वांट द वैल्यू जीरो, सो आई कैन पुट द इक्वल्स टू जीरो। सो जब आप इसको इक्वल्स टू जीरो के हिसाब से सॉल्व करोगे तो लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 7 8 में सॉल्व करना सीखा है। सो इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू, फिर वही बात क्या हुआ, ये -7 क्या होगा प्लस, सॉरी -3 क्या होगा +3 में चला जाएगा। It will become x is equals to 3. Now what does this x is equals to 3 means? The x is equals to 3 means if you will put 3 in place of x you will get 0. Are you getting my point? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझाया बच्चे? ध्यान से देखना, टाइम पास नहीं करना, मोबाइल लेके मत बैठना, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना। क्या समझाया? जीरोस का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जहां पर आप वैल्यू पुट करने के बाद वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देती है, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। Secondly, how we will find it? Suppose I am taking one more example. हमें दे दिया x minus 7. So how can I put? देखो मुझे क्या चाहिए कि x की वो वैल्यू जो इसको जीरो बना देती है, x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको क्या बना दे रही है, जीरो बना रही है। So I will put it equals to 0. When I will put it equals to 0, then it will become x is equals to -7 उस तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा +7. That means the value of x is equals to 7 will make it 0. मैं इसको x is equals to 7 रख दूंगा तो 7 minus 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। That means this value of the equation will, this value of the x will make it 0. 0 of the equation का मतलब समझ में आ रहा है? बिल्कुल माइंड में बैठाइएगा, ये पॉलिनोमियल का बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम, अभी हम आगे चलेंगे इसको लेके। ठीक है, ध्यान में समझने वाली बात है। आगे देखो बेटा, you will have asked questions, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे, find the value of p2, find the value of p3 in this way. Suppose I am taking one more, I am taking one example. You have given px is equals to 2x square minus 5x plus 4 and asked find the value p2. आप p2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। You can be asked find the value of p5. You can be asked find the value of 1/2, p1/2. So what does this means p2? ये p2 का मतलब क्या है, कई सारे बच्चों को पता ही नहीं है। ये px का मतलब क्या है, py अगर मैं लिखता हूं इसका मतलब क्या है, py का मतलब है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, px का मतलब है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। हम वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो py मींस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, px means polynomial in terms of x. If I am writing pa, that means the same polynomial will become 2a square minus 5a plus 4. Why? Because now I am taking in terms of a. Here I have taken in terms of x. If py I am writing, I will write it as py is equals to 2y square minus 5y plus 4. Keep in mind, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो px का मतलब होता है the variable, the polynomial in terms of x. So you have asked
P2, जब आपसे P2 की वैल्यू पूछी गई है, सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। P2 मींस वी हैव टू पुट, जैसे x था तो हमने x की टर्म्स में लिखा था, P2 मींस वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ 2, तो 2 into x की प्लेस पे 2 पुट किया बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 into 2 प्लस 4, ठीक है बच्चे, दैट 2 into 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 into 2 कितना होगा 10 प्लस 4, गॉट इट, दैट इज 8 minus 10 plus 4, this is plus, so plus plus will get added, I will get 12 minus 10 and the answer is 2. So what is this? This is the value of this polynomial px at x is equals to 2. This is the value of this polynomial px at x is equals to 2. Got it? In this way we can find out the different values. अभी इससे बेस्ड क्वेश्चंस आगे कराऊंगा, मैं अभी फिलहाल आपको सिंपल इसके जो बेसिक्स हैं वो समझाना कि मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चंस हम अभी नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। Got it? So this is the meaning of this thing, okay? जीरोस का मतलब क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है जीरोस को, ये चीज मैंने आपको सिखाई। आगे देखते हैं, इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर लेक्चर आल्सो, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, यहां से बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है, समझते चलेगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम होती है हमारे पास, पहले मैं लिख रहा हूं, क्या कहता है, इफ वी हैव a polynomial px of degree n, where n is greater than equals to 1, sorry, where n is greater than equals to 1, and if it is divided by x minus a, this polynomial px is divided by x minus a, then the remainder will be PA, then the remainder will be PA। इसका मतलब क्या है, पहले तो आप समझो कि रिमाइंडर थ्योरम कह क्या रही है। रिमाइंडर थ्योरम हमसे कह रही है, इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री आइदर 1 और ग्रेटर देन 1, द डिग्री शुड बी इज इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1। क्या लिखा मैंने, px ऑफ डिग्री n where n should be greater than or equals to 1, इतना समझो पहले। दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो क्या नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू, सॉरी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। सो एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल था, मैंने उसको x माइनस ए से डिवाइड किया, आई हैव डिवाइडेड दैट पॉलिनोमियल बाय x माइनस ए, ठीक। सो इफ आई एम डिवाइडिंग इट बाय x माइनस ए, तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा, आपने क्लास 8th में लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था अलजेब्रा का, यू हैव डन द लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ अलजेब्रा इन क्लास 8। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, इस तरह से पूरा बनाते थे बेटा, है ना, इस तरह से बनाते थे और लास्ट में यहाँ हमारा रिमाइंडर आता था। तो दिस रिमाइंडर थ्योरम इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, दिस रिमाइंडर डायरेक्टली विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है, ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज इस चीज के लिए है कि हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रिमाइंडर एक्चुअली डूइंग विदाउट दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को किए बिना हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जब मैं किसी एक पॉलिनोमियल को, आई हैव ए पॉलिनोमियल px हियर and I am dividing it by x minus a, I am dividing it by x minus a, then in this case the remainder will be PA। Now what is the meaning of PA? मैंने इससे पिछले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था आपको, P2 means value of the polynomial at 2, P3 means value of polynomial at x is equals to 3, P5 means value of polynomial at 5। So in the same way PA means the value of polynomial at a, so x minus a is equals to x minus a we have it as a divisor, and px the polynomial, whatever be the polynomial, we will divide it by the x minus a, in this case the remainder will be pa। उस केस में हमारे पास रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, pa आता है, इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर थ्योरम। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट
विथ सम क्वेश्चंस। इसको कुछ क्वेश्चंस के साथ आप समझने की कोशिश करो, ऐसे समझ में कम आता है ना। देखो क्वेश्चन लेते हैं बेटा। Find the remainder when the polynomial px is equals to x raised to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 is divided by x minus 2 is divided by x minus 2. ठीक, this is the px and suppose this is gx, we can say anything, we can say बेटा gx, px, rx, qx कुछ भी बोल सकते हो, ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। बस ध्यान रखना अगर हमारे पास यहाँ पर x है then it will be also x। क्यों? x का मतलब होता है कि वो x के टर्म में है। अगर वहाँ x है आपने यहाँ y लिख दिया तो वो गलत बात है ना। तो px इज ए पॉलिनोमियल, हमारे पास क्या है, px एक पॉलिनोमियल है। ठीक, इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 2 से। अगर मैं आपसे बोलूंगा डू विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर मैं आपसे बोलूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, तो वो चीज आपने क्लास 8 तक पढ़ी है। यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं थोड़ा तेज चलूंगा, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि हम बिना रिमाइंडर, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करना चाहते हैं, हम सिंपली रिमाइंडर थ्योरम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं। सो हाउ वी विल अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको p जो हम जीरो फाइंड आउट कर रहे, जीरो फाइंड आउट करना सिखाया इससे पिछले वाले क्वेश्चंस पे। हमने जीरो कैसे फाइंड आउट किया था, जैसे x माइनस 7 था तो हमने क्या किया था, दैट इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 7 इज द 0 फॉर इट। x इज इक्वल्स टू x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 था तो हम कह रहे थे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 5 इज द 0 फॉर इट। हमारे पास दिया था x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और कहा था कि इसका x प्लस 5 इज ए पॉलिनोमियल और इसका 0 फाइंड आउट करो, तो हमने इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया था और हमारे पास आ रहा था x इज इक्वल्स टू माइनस 5 आ रहा था। सो here what we will do बेटा, हम क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द जीरो ऑफ द डिवाइजर। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइजर का जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द डिवाइजर, व्हाट वी विल डू, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस ये डिवाइजर है, इसका मुझे क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। एंड इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस डिवाइजर, आई विल पुट इट एज इक्वल्स टू 0 और जब मैं इसको इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है, x इज इक्वल्स टू 2 आता है। क्या आता है, x इज इक्वल्स टू 2 आता है। तो आपसे क्या बोला था, द वैल्यू एट pa, तो रिमाइंडर क्या बनता है, pa बनता है। क्या बोला था, रिमाइंडर pa बनता है। आप जब when you will divide this polynomial by this gx, you will get the answer the remainder pa, ये आपसे बोला था। तो a की जगह आप क्या पुट कर दोगे, now what you will do, this value of x put here in the polynomial given as dividend, आप इसमें यहाँ इसको पुट करो तो ये आएगा p2 is equals to 2 raised to the power 4 plus 2 cube minus 3 2 square plus 2 minus 1, and if you are going to solve it, 2 raised to the power 4 that means 16 plus 2 raised to the power 3 into 2 that means again 16 minus 3 into 2 raised to the power 4 2 raised to the power 2 that means 4 plus 2 minus 1. Okay, this is 16 plus 16 32 and 3 into 4 minus 12 plus 2 and minus 1 that is plus 1 plus 1 and 32 that is 33 minus 12, and if you will subtract it you will get 21। क्या मिलेगा आपको, 21 मिलेगा। तो मींस p2 की वैल्यू कितनी आई, 21 आई, एंड दिस इज द रिमाइंडर फॉर अस। यही हमारे लिए क्या है, रिमाइंडर है। हम बोलते हैं कि यही हमारा रिमाइंडर आता है। कैसे आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे आता है, बहुत ध्यान से देखना। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे आता है, वर्ड हम आपको सिंपल स्टेप बता दे रहा हूं। अभी तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो अब स्टेप याद कर लो। स्टेप नंबर 1, यू विल बी गिवन px एंड gx। आपको दो चीजें दी जाएंगी, डिवाइडेंड एंड डिवाइजर। पुट डिवाइजर इज इक्वल्स टू 0, डिवाइजर इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। पुट डिवाइजर इज इक्वल्स टू 0, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग फ्रॉम देयर, पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल। उस वैल्यू को x की कहां पर पुट कर दो, पॉलिनोमियल में पुट कर दो। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन दिस वे यू कैन डू दिस डिवीजन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा, अब समझने की कोशिश करो। मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है।
इस पे हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, और ऐसा नहीं है कि इसका यूज यहीं है 9th क्लास में है, इसका बहुत आगे तक यूज जाता है ना, और इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल fx, पॉलिनोमियल आप px लिख लो, fx लिख लो, qx लिख लो, आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो fx को डिवाइड कर रहे हैं, अब जल्दी थोड़ा तेज चलना, fx को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 3 से, इसको मैंने मान लिया gx। स्टेप नंबर 1 क्या बताया, पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0, डिवाइजर इज x प्लस 3, पुट इट इज इक्वल टू 0, यू विल गेट x इज इक्वल टू -3। बट जिसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व नहीं करनी आ रही, आना कक्षा 6 की क्लास पढ़ना है वहां पढ़ाऊंगा, अब क्या करूं बताओ, लीनियर इक्वेशन नहीं समझ में आ रही तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 आया, बात समझ में आ रही है। नाउ व्हाट यू विल डू, पहला स्टेप नंबर 1, पुट gx is equals to 0, find value of x, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक। नाउ सेकेंड स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ x इन px और fx, वट एवर द पॉलिनोमियल इज गिवन, इसको कहां कर दो, fx और px जो दिया गया उसे पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, f -3 लिख दिया x की जगह पे, -3 क्यूब -3 and -3 स्क्वायर प्लस 4 -3 प्लस 50, गॉट इट। सो इट विल बिकम -3 क्यूब, माइनस के क्यूब हमेशा माइनस में जाते हैं, ध्यान देना, तो माइनस क्यूब दैट इज -27 -3 इंटू माइनस के स्क्वायर प्लस में बन जाते हैं, प्लस 3 इंटू -4 इंटू -3 -12, प्लस माइनस माइनस हो गया, हर एक स्टेप नहीं दिखाऊंगा इंटीजर्स का, है ना। सो इट विल बिकम -27, ये देखो बेटा 9 इंटू -3, वापस -27 बना, -12 वो है हमारे पास, और प्लस का 50 ये रहा हमारे पास, ठीक। सो इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, -27 -54 -12 ये है, और उसके बाद हमारे पास है प्लस का 50, ठीक। थोड़ा सॉल्व करते समय दिमाग लगाया करो कि बड़े छोटे नंबर को ऐसे सॉल्व करें कि हमको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 50 और 54 को सॉल्व करना ज्यादा इजी है, 54 में से 50 गया, हमारे पास सब्ट्रैक्ट हुआ तो -4 बच गया, -4 एंड -12, इन दिस वे वी गेट -16। ये क्या है हमारा, ये वो चीज आई जो इसे रिमाइंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। हम बोलेंगे कि जब मैं इस gx से इस fx को डिवाइड करूंगा, then the remainder will be -16, and this is the use of remainder theorem, this is the use of remainder theorem। एनर्जी लाओ, थोड़ा सा कॉपी किताब लेके जागो मेरे बच्चे, ऐसे सो के थोड़ी पढ़ाई होगी, ये चीज समझ में आ रही है, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। इससे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, बहुत खूबसूरत से क्वेश्चंस नो, यहाँ देखने में करने में मजा आता है। तो उस चीज के लिए आप क्या करो, वेट करो, ठीक। मैं भी आपको आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर्स जितने भी रिमाइंडर थ्योरम को लेके आऊंगा, उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू, गॉट इट। एंड दिस इज द बेसिक ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। इसका कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आती है कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू again some lectures on it. Thank you.